everyone, let's discuss Clause 7 Part 1 First Schedule. Now, Clause 7 Part 1 First Schedule के केस में a CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he advertises his professional attainment or services or uses any designation or expression other than chartered accountant or on professional documents, on the visiting cards, letterheads और signboards. ठीक है, might feel very similar to clause 6 itself कि अगेन यहाँ पर तो अपने ही प्रोफेशनल अटेनमेंट्स को एडवर्टाइज करने की बात कर रहे हैं. अल्टीमेट गोल वही होता है कि प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट क्यों, प्रोफेशनल अटेनमेंट क्यों आप बताते हो, बिकॉज ये आपका पर्पस ही होता है कि आपको यू वांट टू सॉलिसिट क्लाइंट्स, यू वांट टू सिक्योर प्रोफेशनल वर्क, राइट. बट देन हाउ क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 डिफरेंशिएट्स, और आप उसको व्हेन इन योर क्वेश्चंस यू शुड आंसर एज पर क्लॉज 6 एज पर क्लॉज 7. बहुत ग्रे लाइन है, इट्स अ वेरी थिन लाइन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लॉज 6 क्लॉज 7 कहाँ यूज करना है. एंड सम ऑफ द केसेस जहाँ पे बहुत ग्रे होता है, एंड इन दैट केस क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 दोनों के रेफरेंस में आपको आंसर करके आना पड़ता है. ठीक है, सो व्हाट इफ दिस इज द कंफ्यूजन यू हैव, रेस्ट ऑफ द इंडिया ऑल्सो हैव द सेम कंफ्यूजन कौन सा क्लॉज कब यूज करना है व्हेन इट कम्स टू द एडवर्टीजमेंट, बिकॉज बहुत ही ओवरलैपिंग पॉइंट्स है इसमें. तो क्या बोलता है कि सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ professional misconduct if he advertises his professional attainment or services or uses any designation or expression other than the chartered accountant on professional document, visiting cards, letterheads or signboards. However, however, recognized degree of university or title indicating membership of ICI or other recognized institution may be used. So now this is for the inclusivity, because they want to include that if you have like BCom BBA का degree from any university and you want to write down about that designation कि हाँ मतलब डिग्री आप मेंशन करना चाहते हो, तो यू कैन कंटिन्यू टू डू दैट. एंड उसके जैसे जैसे अदर रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल CS हो आप, CMA हो आप, एट द सेम टाइम आप मेंशन कर सकते हो एक्चुअली हो यू, एट द सेम टाइम यू कैन मेंशन द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एट द सेम टाइम आपके CV पर, CV बोल रहे विजिटिंग कार्ड वगैरह पे आप मेंशन कर सकते हो यू आर अ C इन प्रैक्टिस. अलॉन्ग विद दैट यू कैन यूज अदर डेजिग्नेशन एज वेल. सो दिस इज समथिंग अलाउड. बट इसके अलावा अदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में आप अदर देन द डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी कुछ भी ऐसा रैंडम वर्डिंग्स आप लिखने चाहते हो वहाँ पर, जैसे IBC है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, तो भी आप मेंशन कर सकते हो. तो इनमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड फॉर एग्जांपल व्हाट वाज द अनदर वन, एक्चुअली आप मेंशन कर सकते हो. बट उसके अलावा आपको अगर कुछ मेंशन करना है, सो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट इट शुड क्वालिफाई इनटू वन ऑफ दीज, अदरवाइज यू विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट. ठीक है. Now coming to your module, there is on page number 19.33, there is a point which says a member in practice is prohibited from using a designation other than the chartered accountant, right? So this is something that you have also studied in clause 7 कि आप वहाँ पर कोई और designation mention नहीं कर सकते, and plus वहाँ पर कुछ exceptions दे दिए. लेकिन for example, you are a merchant banker or advertiser to an issue. So a member may apply for a or obtain a registration as category 4 merchant banker under the SEBI rules and regulation and act as a advisor or consultant to an issue. In clients, companies offer document and advertisement regarding the capital issue, name and address of the chartered accountant and the firm of the chartered accountant acting as an advisor or consultant could be indicated under the caption advertiser or consultant to the issue. However, the name or address of the chartered accountant and the firm of chartered accountant should not appear prominently. ठीक है. Now, members who are also cost accountant. Though a member cannot designate himself as cost accountant, he can use the letters ACMA or FCMA after his name when he is a member of that institute. ठीक है. Permission to mention qualification of certain institution, जैसे कि the member are permitted to mention membership of foreign institute of accountancy which has been recognized by the council through a MOU or MRA with the said institute. So MOU, MRA, recognition agreement या फिर अंडरस्टैंडिंग मेमोरेंडम अगर साइंड है उस कंट्री में उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ में, तो देन यू कैन मेंशन अबाउट दैट अकाउंटिंग सर्टिफिकेट्स, अदरवाइज आप मेंशन नहीं कर सकते.
director of a company, member of a political party, and position in clubs. The member of the institute who are also the director in the company, the member of the institute who are also director in the company, member of the political party, या तो फिर chartered accountant cells in the political party, holding different positions in clubs or other organization are not permitted to mention these position as they would be violative of the provision of section 7 of the act. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो आपको क्लॉज 7 के साथ में आप क्लॉज मतलब देयर इज अ सेक्शन 7 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो आपको अलाउ, आप सीए एज अ प्रीफिक्स मतलब आप मेंबर इन प्रैक्टिस है नाउ, आप सीए एज अ प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेंबर इन प्रैक्टिस है तो आपको ये नीचे वाले पॉइंट जो सेक्शन 7 के अंदर उन्होंने इंक्लूड किए हैं ये ध्यान देना पड़ेगा। एंड प्लस इसके अलावा जो बाकी चीजें इंक्लूडेड है इन योर क्लॉज 7 वो तो आपको देखना ही है, बट दिस इज समथिंग मैं वहां से रिलेट करवाना चाहती थी, राइट? सो वो आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से वो वाला हिस्सा पार्ट जरूर देखना। ठीक है, क्लॉज 7 पे चलते हैं। ठीक है, क्लॉज 6 7 का लैंग्वेज आपको आता है। इफ यू आर एडवर्टाइजिंग द प्रोफेशनल अटेनमेंट और द सर्विसेज और यूजिंग एनी डेजिग्नेशन अदर देन द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड, unless it be a degree of university established by law in India or recognized by the central government, or a title indicating membership of the Institute of Chartered Accountants or any other institution that have been recognized by the central government or may be recognized by the council, provided that the member in practice may advertise through a write-up setting out the service provided by him or his firm or particulars of his firm subject to such guidelines as may be issued by the council। मतलब आप आपके राइटअप बना सकते हो और उस राइटअप में आप आपके सर्विसेज के बारे में सेटिंग आउट द सर्विसेज, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो वो चीज़ें आप राइटअप में दे सकते हो बाय फॉलोइंग द गाइडलाइंस। प्लीज रिमेंबर दिस कि राइटअप अलाउड है अगर आप गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब इन जनरल आप अपना कोई भी यू कैन नॉट एडवर्टाइज द प्रोफेशनल अटेनमेंट, बट आपको अगर राइटअप देना है रिस्ट्रिक्टेड वे में राइटअप देना है तो फिर आप वो फॉलो करके यू कैन डू दैट। मेक सेंस? नाउ व्हेन यू रिमेंबर दिस मच ऑफ द लैंग्वेज ऑफ, इतना तो आपको लैंग्वेज आना चाहिए, अगर आप इतना लैंग्वेज एज इट इज लिख करके आते हो तो उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। ठीक है, अदर डेजिग्नेशन में उन्होंने सिंपली बोला कि देखो बाबा आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में इनकम टैक्स कंसल्टेंट है, कॉस्ट कंसल्टेंट है, मैं कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट कंसल्टेंट है और मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, यू नो इट इज इम्प्रॉपर फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस टू स्टेट दीज थिंग्स इन योर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बट उन्होंने क्या बोला, वाइल नोटिंग दैट इट हैड ऑलरेडी अलाउड इट्स मेंबर टू अपीयर बिफोर द वेरियस अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द कंपनी लॉ बोर्ड, आप यू मस्ट नो दैट आप ट्राइब्यूनल के सामने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वहां पर आपको काउंसिल लगेगा, वहां पर आपको बार काउंसिल का मेंबर लगता है, लेकिन आप ट्राइब्यूनल तक तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सपोज सेल्स टैक्स है, जीएसटी, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल तक आप गए वेयर द लॉ परमिट द सेम। As so far as the designation of corporate lawyer is concerned, the council was of the view that as per the existing provision of the law, chartered accountant in practice is not entitled to use the designation corporate lawyer। ठीक है, सो अब अगर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वहां पर इन फ्रंट ऑफ वेरियस अथॉरिटीज तो वहां पर कॉर्पोरेट लॉयर करके डेजिग्नेशन यूज मत करना, यू आर अ सीए इन प्रैक्टिस। A member must not use the designation as member of the parliament, municipal councillor, nor any other functionary in addition to the chartered accountant। A member impaneled as the insolvency professional, registered valuer can mention insolvency professional or registered valuer respectively on his visiting card and letterhead। That is allowed। ठीक है, नाउ कुछ क्वालिफिकेशंस उन्होंने बोले थे कि आप यूज कर सकते हो, जैसे कि उन्होंने बोला था एमओयू एमआरए साइन है तो यू कैन यूज द क्वालिफिकेशन, जैसे कि सीपीए, आईसीएईडब्ल्यू, एसएआईसीए मतलब साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस कब सेटअप की है, date of setting up of the practice by a member or the date of establishment of the firm on the letterheads or other professional document should not be mentioned। हाँ, 25 साल 50 साल हो गए हैं, आप सेलिब्रेट करो फर्म का, लेकिन लेटर हेड में बता के देख रहे हो हर साल आप
आपका लेटर हेड मॉडिफाई कर रहे हो क्योंकि आपके ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं सीए फर्म के प्रैक्टिस के, यू आर ट्राइंग टू अननेसेसरी एडवर्टाइज कि हम 50 साल 100 साल पुराना फर्म है। सीए फर्म्स नॉर्मली अपने बातों में भी लाइक वी आर 50 years established फर्म, ये दिस इज नॉट अलाउड। लेटर हेड और अदर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में ऐसा मेंशन नहीं करने का कभी भी डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, ठीक है। डेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्रैक्टिस अलाउड नहीं है। देन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, इसके ऊपर ना आपको बहुत सवाल रहते हैं कि इफ यू आर प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट तब क्या होगा, यू आर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सी, members of the institute in practice who are otherwise eligible may actually practice as advocates subject to the permission of bar council in such cases। बार काउंसिल का परमिशन लेने के बाद में ही you can practice as a lawyer also, advocate also। they should not use designation chartered accountant in respect of matters involving the practice as an advocate। अगर सपोज आप सीए है, एडवोकेट है सेम टाइम पे, और आप एडवोकेट होने के नाते कोई मैटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट डिजिग्नेशन में यूज नहीं कर सकते। In respect of other matters, they should use the designation chartered accountant, but they should not use designation chartered accountant and advocate simultaneously, allowed नहीं है आपको। बट सपोज आप एज एन एडवोकेट नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस में है, प्लस आप कंपनी सेक्रेटरी भी है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, सीए पहले क्रैक करते फिर उनको लगता है सीए सो सीए में भी हो जाएगा, फटाक से क्रैक कर लेते हैं। ग्रेट। Member of the institute in practice who are otherwise eligible may also practice as CS or cost management accountant। Such members shall, however, not use the designation aforesaid simultaneously with the designation chartered accountant। ठीक है, सो आप मल्टीपल उसमें आप एक साथ काम कर रहे हैं तो यू शुड नॉट मेंशन दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप एक साथ मेंशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। It is clarified that that in the event of permission being granted to a member in practice to also hold COP of sister institute or the bar council, such member will be treated as member in full time practice। अगर आपको ऐसा हो गया कि बार काउंसिल ने आपको परमिशन दे दिया कि ओके बॉस तुम सीए में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम बार काउंसिल के अंदर भी एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो, तो देन इन दैट केस आपको तभी भी आपको सीए इन प्रैक्टिस फुल टाइम प्रैक्टिस माना जाएगा, ठीक है। मैं मेंशन ऑफ द फर्म नेम एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब देखो आप फर्म का नाम मेंशन करना है। इट इज नॉट प्रॉपर फॉर द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू यूज द डेजिग्नेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्ट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, साइन बोर्ड, अंडर द सर्कमस्टांसेस clarified under clause 6। however an individual member may use the prefix ca with his name। मतलब उन्होंने बोला प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, एक्सेप्ट फॉर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट आप कहीं पर भी अपना ना ये सीए फॉर्म का नाम ये सब मेंशन नहीं करें। हाँ आपको सीए है आप वो मेंशन करके दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के अलावा डू नॉट मेंशन दैट यू नो दीज थिंग्स एनीवेयर एल्स। लेकिन फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला था कि जब आप हमने क्लास 6 में पढ़ा था तो वहाँ पर क्या बोला था कि यू सीए यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस आपका फॉर्म नेम है जो आप मेंशन करना चाहते हो किसमें, व्हेन यू आर इनवाइटिंग समबडी फॉर योर रिलीजियस सेरेमनी या फिर मैरिज इनविटेशन है और ये सब चीज़ें हैं, तो वहाँ पर भी क्या बोला था आपको क्लियरली उस पर्टिकुलर केस में कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस सीए इन फॉर्म, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस मेंबर और नेम ऑफ द फर्म आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा अब लेकिन डू नॉट गो ऑन एंड मेंशन द नेम ऑफ द फर्म एवरीवेयर, ठीक है। नाउ notice in the press relating to success in an examination। oh great। notice in the press relating to success in the examination of an individual candidate should not contain any element, क्या बोल रहा है, where is the pen, should not contain should not contain any element of undesirable publicity either in relation to article, audit assistant or employee or the member of the firm with whom he was served। आपका कोई आर्टिकल है, यू नो ऑडिट असिस्टेंट है सीए फर्म में, एग्जाम्स दे आर गिविंग द एग्जाम्स एंड ऑल करके, राइट, एंड सपोज उनका सीए क्वालिफाई हो जाता है और आपके फर्म में ही काम कर रहे हैं, तो व्हाट यू डू, यू सडनली स्टार्ट टू एडवर्टाइज अबाउट, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करके उसका फोटो वोटो लगा करके न्यूज़पेपर में लगवा दिया आपने, और वहाँ पर अपना सीए फर्म्स का लेकिन वो बोल बाल करने के लिए आपने सीए फर्म का मेंशन कर दिया कि इज आर्टिकल असिस्टेंट इन दिस फर्म एंड दैट विल अगेन लाइक नीडलेस पब्लिसिटी, अनडिजायरेबल पब्लिसिटी कर रहे हो आपका फर्म का नाम मेंशन करके, उनका सहारा
सहारा लेके, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड टू यू, ठीक है। बट इट इज यूजुअल फॉर द लोकल पेपर्स टू पब्लिश डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशन सक्सेस ऑफ द लोकल कैंडिडेट, सम बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन इज ऑफन इंक्लूडेड। सो अक्सर वो लोग मेंशन करते हैं, लाइक मेरे को न्यूज़ पेपर वालों को ना कुछ तो कुछ डिटेल लगती है कैंडिडेट्स का जब भी वो पास होते हैं। So the rule aforementioned is not intended to discourage the printing of news of local interest, but it is intended to indicate the need of the restraint कि भाई वो unnecessary, like you know, फॉर्म का नाम का फॉर्म का एडवर्टीजमेंट नहीं लगना चाहिए उसमें, तो डेफिनेटली दे विल मेंशन सम ऑफ द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन of that candidate. So the candidate's name, address, school, local background, examination part with detail of any prize gained, the name of the principal, firm, town in which the principal practice may be published, ठीक है। तो जहाँ पर प्रिंसिपल है वो उनका नाम वगैरह मेंशन कर देते हैं नॉर्मली कहाँ पर काम किया हुआ, बट इट शुड नॉट लुक लाइक कि आप उसका सहारा लेकर के अपना एडवर्टीजमेंट्स करना चालू कर दिया, ठीक है। अभी सीए इन प्रैक्टिस है, यू आर गोइंग टू इशू द रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। सो व्हेन यू आर issuing the reports and the certificate by a chartered accountant, bring him to the notice of the public is a greater or lesser degree। व्हाट दे मीन इज सिंपली रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट, मतलब कभी भी आप जब रिपोर्ट और सर्टिफिकेट इशू करो तो मेक श्योर करो कि आप उसको प्रॉपर अपने फॉर्म के लेटर हेड में इशू कर रहे हो, अननेसेसरी उसमें प्रिंटिंग और ये सब डिजाइनिंग नहीं चाहिए। सो द एक्सटेंट एंड द मैनर ऑफ पब्लिकेशन जो है आपके रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स का आर लिमिटेड टू व्हाट इज नेसेसरी टू इनेबल द रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट टू सर्व इट्स पर्पस। ऑडिट रिपोर्ट है, कोई भी अटेस्टेशन फंक्शन का आपने सर्टिफिकेट दिया है, प्लीज इंश्योर कि उसका जो मैनर ऑफ सब पब्लिकेशन है, उसका एक्सटेंट ऑफ पब्लिकेशन है, दैट इज इन द यू आर यूजिंग द लेटर हेड ऑफ द फॉर्म फॉर इशूइंग दोज रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज मेक श्योर दैट यू नो वॉट इज टू बी रिटन ओवर देयर, इवन दो द कंटेंट इज हैवी, आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट क्या हिट करना है। देन अपीयरेंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट, ठीक है। और दिस इज समथिंग जो आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था कि वहाँ पर आप इंटरव्यूज पे जा रहे हो तो यू शुड नॉट अननेसेसरी अनलेस एंड until it is asked to you about the farm name and all, you should not mention it, right, unless and until it is not asked, right। so same चीज यहाँ बोलती है, any exaggerated claim or any kind of comparison is not permissible, what he may say or write must not be promotional of him or his firm, or but must be an ऑब्जेक्टिव प्रोफेशनल व्यू ऑफ द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन। सो अगर आपको रेडियो टीवी वगैरह पे कहीं पर बुलाया हुआ है तो जिस सब्जेक्ट मैटर पे बात कर रहे हैं आप उस पर बात करिए, अननेसेसरी एक्सेजरेशन क्लेम्स वगैरह की हमारा फॉर्म ये वो नहीं करने की जरूरत है। Publicity is permitted for appointments to position of local or national importance or for the views of the member and matters of similar importance, like for example GST का मैटर है, समथिंग बजट आया, तो ये सब सीए इन प्रैक्टिस को ही बुलाया जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स होते हैं वहाँ पर जिनको बुलाया जाता है, राइट। So mention of the membership the institute is desirable in the case what should be aim is to achieve suitable पब्लिसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब आप बताएं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यू आर द मेंबर ऑफ द आईसीआई, ये चीज़ें बताना जरूर। मेंबर्स और इंस्टीट्यूट का आप बात कर सकते हैं कि हम ये इंस्टीट्यूट से हैं, लेकिन यू शुड नॉट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फॉर्म ओवर देयर, ठीक है। सो मेंबर गिविंग एनी टॉक्स और द लेक्चर और अटेंडिंग एनी कॉन्फ्रेंस में डिस्क्राइब themselves as chartered accountant only when they are acting in their capacity as chartered accountant, however reference to the professional firm of the member should not be given, ठीक है, फॉर्म नेम वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है। देन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग कोर्सेज सेमिनार फॉर हिज स्टाफ, सो मतलब यू आर ऑर्गेनाइजिंग दैट, अपने ही सीए इन प्रैक्टिस हो, अपने ही फर्म के स्टाफ वगैरह के लिए आपने ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की है। Undue prominence should not be given to the name of chartered accountant in any booklet or document issued in connection therewith, ठीक है। सो आपने ट्रेनिंग करवाया, सेमिनार्स कराया फॉर स्टाफ में, ऑल्सो इन्वाइट द स्टाफ और अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्लाइंट्स टू अटेंड द सेम। ऐसा होता है सीए फर्म्स में, कभी कभी बड़े बड़े सेमिनार्स रखते हैं तो क्लाइंट्स को दूसरे सीए फर्म्स को बुलाते हैं, लेकिन वहां पर फिर वो बुकलेट वगैरह जो इशू होती है वो सेमिनार्स की, उसमें अपने ही सीए फर्म्स का बड़ा बड़ा बोलबाला चल रहा है, ठीक है। सो अनड्यू प्रोमिनेंस शुड नॉट बी गिवन टू द नेम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन एनी बुकलेट और डॉक्यूमेंट इशूड इन कनेक्शन देयर विद, ठीक है। देन राइटिंग आर्टिकल्स और लेटर्स टू द प्रेस, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कुछ बजट से रिलेटेड एक आर्टिकल लेटर वगैरह सबमिट करना है, सो members writing articles or the letter to the press on subjects connected with the profession may give their names and use the description as chartered accountants, ठीक है।
साइज ऑफ द साइन बोर्ड, इसके ऊपर भी का सवाल है कि भाई आपका साइन बोर्ड कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, सो लार्जर देन लाइफ इस टाइप के साइन बोर्ड्स कभी भी परमिसेबल नहीं होते हैं फॉर सीए फॉर्म्स के लिए। इसलिए बहुत ही सिंपल, एकदम लाइक एस्थेटिकली कुछ ज्यादा हाई फाई नहीं दिखता है, एकदम नॉर्मल लुकिंग लाइक साइन बोर्ड यू पुट आउटसाइड योर सीए फॉर्म्स। So a member can have the name board at the place of his residence with the designation chartered accountant, provided it is a nameplate or name board of an individual member and not the firm. So जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करके मेंशन कर सकते हो, बट आप वहाँ पर फर्म का नाम वगैरह मत देने। बाकी आपके शॉप के ऊपर आप लार्ज साइज बोर्ड एज इशूड बाय द ट्रेडर शॉपकीपर ये सब मत लगाने लगना। नॉर्मल विजिबिलिटी के लिए आप जो है वो फॉर द सेक ऑफ विजिबिलिटी कि हाँ रात में भी कोई जा रहा है तो उसको दिखना चाहिए, देन उतना आप उसमें इल्यूमिनेशन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वी आर स्टिल ऑन क्लॉज 7। ठीक है, बट उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बोलता है पब्लिक अनाउंसमेंट और विथ डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर। क्या बोला? पब्लिक अनाउंसमेंट विथ डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर। A council attention has been drawn. Why I am reading this? Because this is something important। यहाँ पर आप समझना, क्लॉज 6 एंड क्लॉज 7 दोनों के रेफरेंस में उन्होंने बोला है एक काउंसिल का अटेंशन हैज बीन ड्रॉन to the fact that more and more companies are appointing chartered accountants and director on their board में include करके लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है basically what they feel is chartered accountant they are like normally expert in the business, normally they are expert in the accounting, taxation, like they help the businesses grow by giving them the advices how to utilize the funds better, how to make sure that tax planning is done better। so ये सब करने में जब आप help करता है तो नॉर्मली वो व्हाट दे से कि यार ओके यू कैन नॉट बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर बट बोर्ड पे आ जाओ, एडवाइस बोर्ड की मीटिंग्स में बैठो, एडवर्टाइज करो। तो बहुत सारे सीए इन प्रैक्टिस आल्सो डू दैट, दैट इज आल्सो अलाउड, राइट, परमिटेड टू यू। तो नाउ if you are doing that, the prospectus or the public announcement issued by these companies often publish the description of chartered accountant expertise, specialization and knowledge in any particular field, or add appellation or adjective to their name। Attention to the members in this context is invited to the provision of Clause 6 and Clause 7 of Part 1 of First Schedule to the Chartered Accountant Act। तो जिन कंपनी में आप डायरेक्टर बने हो ना, नॉर्मली डायरेक्टर्स वगैरह का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन जाता है ना, तो उसमें बहुत बड़े बड़े स्पीचेस वगैरह ये सब आते हैं। तो सपोज आपका भी बोर्ड में नाम है तो आपका स्पेशलाइजेशन, आपके प्रैक्टिस में क्या, आपका नॉलेज वगैरह के बारे में बहुत सारी चीज़ें कंपनीज ने देना चालू कर दिया, अगर कभी भी सीएस उनके बोर्ड में है होते हैं तो। ठीक है, सो क्या किया इंस्टीट्यूट ने, क्या बोला, इन ऑर्डर दैट द इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ अ मेंबर in the prospectus or public announcements or the public communication issued by companies in which the member is director does not contravene the above noted provision, it is necessary the member should take necessary steps to ensure that such prospectus at the public announcement or the public communication do not advertise his professional attainments, and also that such prospectus or public announcement or public communication do not directly or indirectly amount to solicitation of the client or the professional work by the member। While it may be difficult to lay down a rigid rule in this respect, a member must use a good judgment depending upon the facts and circumstances of each case to ensure that provisions are complied with both in the letter and the spirit। ठीक है, it is also advisable for a member that as soon as he is appointed as a director of the board, he should specifically invite the attention of the management of the company to the aforesaid provision and should request that before any such prospectus or public announcement or public communication mentioning the name of the member concerned is issued, material pertaining to such member should as far as practicable be got approved by him। तो उनको बेसिकली बोलो कि भाई तुमको इशू करना है, इशू दैट, बट एटलीस्ट मुझे एक बार दिखा दो, आई नीड टू मेक श्योर कि मेरे ऊपर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, मेक सेंस? हाँ, यूज ऑफ लोगो एंड कॉमन सीए लोगो, ये ध्यान रखो। For use of logos by member on the letterhead visiting card, the council has decided that the logos unconnected with the first letter of the firm or its partner or the proprietor would not be permitted for use by members in practice or firms
of chartered accountant on their letterhead, visiting card, etc., as the same would have amounted to advertisement or smacking of the publicity. So आप जो लाइक लोगो में ना आपके फर्म का मेंबर्स इन प्रैक्टिस का पहला अक्षर आना चाहिए. फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द फर्म और इट्स पार्टनर और द प्रोपराइटर शुड कम ओवर देयर. ठीक है. Subsequent to above, Institute came across the cases of the registration of the firm in the name circumvention of the provision contained in the Regulation 190 of the Chartered Accountant Act. The member of the firm by themselves and or through engineered name had been seeking to obtain firm name approval based on the name of the partner selected in the manner that logo of the firm would be identical to the firm name, which would not have otherwise been permissible as the firm name under Regulation 190. In order to ensure the compliance with the regulation, the council decided that use of the logo or monogram of any kind of form, style, design, color whatsoever on any display material or media or paper, stationery, document, visiting card, magnetic device, internet signboard by the member in practice be prohibited. Use or printing of member or firm name in any other tent amounting to logo monogram was also prohibited. सो सिंपली बोल दिया है कि किसी और टाइप का डिज़ाइन विज़ाइन का नहीं, बहुत सिंपली उनको लोगो यूज़ करना है ना फर्म का नेम का फर्स्ट लेटर यूज़ करके अपना लोगो बनाने का, दैट इज़ फाइन. बट अननेसेसरी उसको डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग करके या कुछ भी ऐसा, लेकिन देर इज़ नो रिलेवेंस टू किसके नाम का है क्या है, एंड यू आर जस्ट दिस इज अलाउड टू द कंपनीज एंड ऑल टू डू. वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट फॉर सीए फर्म्स इट इज़ नॉट अलाउड. वो अननेसेसरी आपको पब्लिसिटी, गंदा टाइप का पब्लिसिटी माना जाता है, सो इट इज़ नॉट अलाउड. देन उन्होंने क्या बोला कि देखो वी वांट टू प्रमोट द ब्रांड ऑफ सीए प्रोफेशन, सिंपल. So to promote the brand of CA promotion and responding to the long felt need of the have a symbol of CA profession in India, ICI came up with the unique logo which could be used by all the members, whether in practice or not. ठीक है. सो आपका जो कॉमन सीए लोगो है जिसमें अभी उन्होंने इंडिया का फ्लैग भी इंक्लूड कर दिया है, आप वो कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली यूज दैट. इसके अलावा कुछ है क्या यहाँ पर? आई थिंक ठीक है. आई थिंक मेक 7 राइट, क्लॉज 7 में काफ़ी कुछ हमने इंपॉर्टेंट गाइडलाइन से रिलेटेड डिस्कस कर लिया है. नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली. आई मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन क्लॉज 8, आप उसको सेपरेट करके ही देखो. फोकस ऑन क्लॉज 8 का, क्लॉज 7 ये पढ़ो, क्लॉज 6 एंड 7 अभी साथ में पढ़ लोगे ना, यू विल बी थोड़ा कॉन्फिडेंट कि उनका आंसर लिखना कैसे है. एंड स्पेसिफिकली देखो, स्टार्टिंग का लैंग्वेज सेम रहता है, बाद में वो कौन से गाइडलाइन को हिट कर रहा है, वो गाइडलाइन को लेकर के आपको आंसर करना है. आपको पूरा प्रोफेशनल एथिक्स में जो याद आ रहा है उस क्लॉज में सब नहीं लिख देना होता है, राइट. सो प्लीज इंश्योर दैट व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर.